student. This is your civics class, class 8. Another reason that it is important to separate religion from the state is democratic society is because we also need to protect the freedom of individual to exist from their religion, embrace another religion, or have the freedom to interrupt religion teaching differently. To understand this point better, let us take the practice of untouchability. You might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. However, it takes state power in the hands of those Hindus who support untouchability. Then, do you think that you would have an easy task to try and change this? Even if you were part of the dominant religion group, you might face a lot of resistance from the fellow members of your community. These members who have control of the state power might say that there is only one interruption of the Hinduism and that you do not have the freedom to interrupt this differently. लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी नहीं लगती हो। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के साथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदायों के सदस्य हैं, तो भी आपको अपने समुदायों के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण करने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदू की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। What is Indian secularism? The Indian Constitution maintains that the Indian state be secular according to the Constitution. Only a secular state can realize its objective to ensure the following. 1. That one religion community does not dominate another. 2. That some members do not dominate other members of the same religious community. 3. That the state does not enforce any particular religion nor take away the religion freedom of the individual. भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने सदस्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकते हैं कि 1. कोई एक धर्म समुदाय किसी दूसरे धर्म समुदाय को ना दबाए। 2. कोई लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्य को ना दबाए। 3. राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस तरह के बदलाव को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह के काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धर्म समुदाय के हाथ में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसी सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती। Page number 22 and 23 is your homework. In the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government policy of treating all religion equally. Government school cannot promote any one religion either in their morning prayer or through religious celebration. This rule does not apply to private school. उपयुक्त चित्रकथा पत्र में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है।
सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रथाओं या धार्मिक आयोजनाओं के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूल पर लागू नहीं है। This is the end of this video. We will continue this chapter in next video. If you have any doubt, please let us know. We will try to clear your doubts in another video. अगर आपको कोई संदेह है तो कृपया करके हमें बताइए। हम अगले वीडियो में आपके संदेह को दूर करने का प्रयास करेंगे।